नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लैग्रेंजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन में अभी तक हम जो सिस्टम कंसीडर कर रहे थे वो कंजर्वेटिव सिस्टम थी। अब कुछ टॉपिक्स नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम या फिर पार्शियली कंजर्वेटिव सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल्स। We know that Lagrange's equations of motion are ddt of del t by del qj dot minus del t by del qj equal to qj, where j runs from 1 to n, number of particles in the system. And this capital Qj is the summation of fi bar dot del ri bar by del qj, which is called generalized forces. This was Lagrange's equation in kinetic energy. फिर इसके बाद हम यूज करते थे कंजर्वेटिव सिस्टम, फोर्सेज आर डिराइवेबल फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी V, एंड Lagrange's equations become, for conservative system, Lagrange's equations become ddt of del L by del Qj dot minus del L by del Qj equal to 0, where L is T minus V, called Lagrangian of the system, and V is potential energy, depends on generalized coordinates. Now, suppose the given system is not conservative and the generalized forces are derivable from some function u which depends on qj and qj dot, means function depending on generalized coordinates and generalized velocities. तो ये जो Q है इसको डिफाइन किया, Qj इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ डेल यू बाय डेल Qj डॉट माइनस डेल यू बाय डेल Qj. रिमेंबर दिस. ये Qj को 1 में यूज कर लेते हैं. पुट दिस Qj इन 1, वी गेट ddt of del t by del qj dot minus del t by del qj. लेफ्ट साइड तो जैसा था वैसा ही है, qj की जगह ये वैल्यू पुट कर दी. अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू qj कंबाइन कर लेते हैं एक तरफ ले आके, तो ये हो गया माइनस डेल qj ऑफ t माइनस यू, और ये ddt की टर्म है, इनको कंबाइन कर लेते ddt ऑफ डेल qj डॉट ऑफ t माइनस यू. Put this t minus u as L dash, then equation is ddt of del L dash by del qj dot minus del L dash by del qj equal to 0, where j runs from 1 to n. Now this is similar to Lagrange's equations for conservative system. वो L के लिए थी, L t minus v था. Now this is L dash t minus u. So equations 2 and 3 are of same form. तो जब इस तरह से Lagrange's इक्वेशन मिल रही हो फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम वेयर जनरलाइज्ड फोर्सेज आर डेरिवेबल फ्रॉम सम फंक्शन u, देन दिस क्वांटिटी u इज कॉल्ड जनरलाइज्ड पोटेंशियल और वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल. थ्योरम. द Lagrange's equations of motion can be written in the form ddt of del L by del qi dot minus del L by del qi is equal to qi dash. For a system which is partially conservative, the quantity L refers to conservative part and quantity qi dash to the forces which are not conservative. लेफ्ट साइड में कंजर्वेटिव से रिलेटेड चीजें दिख रही है और राइट साइड में नॉन कंजर्वेटिव से. इन जनरल Lagrange's इक्वेशंस आर रिटन इन द फॉर्म ddt of del t by del qi dot minus del t by del qi equal to qi. अभी इसके बाद हम कंजर्वेटिव सिस्टम यूज करके फिर इसको L में कन्वर्ट कर देते हैं. हियर
QI generalized forces is summation of Fj bar dot del R J bar by del QI summation over J. Now suppose system is conservative. इक्वेशन को नंबर देते चले जा रहे 1 and 2. Now suppose system is partially conservative. Then what happens? So force can be written as combination of conservative plus non-conservative force, where F conservative and F non-conservative are conservative and non-conservative parts of F respectively. Now for conservative force, they are derivable from potential energy. Fj conservative is derivable from potential energy minus del V by del Rj bar, where V is potential energy. तो QI के एक्सप्रेशन में F को पहले तो Fj कंजर्वेटिव प्लस Fj नॉन कंजर्वेटिव लिखा और फिर F कंजर्वेटिव को माइनस del V by del Rj बार, और अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस बाहर समेशन del V by del Rj बार डॉट del Rj by del QI प्लस नेक्स्ट टर्म का समेशन सेपरेट हो गया, समेशन ऑफ Fj फॉर नॉन कंजर्वेटिव डॉट del Rj by del QI. अब ये जो समेशन है फर्स्ट टर्म, इसको यदि फुल फॉर्म में देखें j runs from 1 to n, तो दिस विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू QI by chain rule, del V by del QI, and this is similar to second term is similar to summation F dot del Rj by del QI दिख रहा है, लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो इसको हम डिनोट कर देते QI डैश से, where QI dash is summation of force for non conservative part dot del Rj by del QI are the components of generalized forces which are non conservative. Now put this Q in equation 3 in equation 1. तो लेफ्ट साइड तो सेम है, dt of del t by del QI dot minus del t by del QI इक्वल टू QI के लिए ये वैल्यू पुट कर देते 3 में से माइनस del V by del QI प्लस QI डैश. इसको रीअरेंज करो, ये माइनस del V by del QI को ये del QI के साथ कंबाइन करके लिखा जा सकता है माइनस del QI ऑफ t माइनस v QI डैश, और यहाँ पर v पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, तो उनका डेरिवेटिव QI डॉट से 0 होगा, तो हम यहाँ पर भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं माइनस del V by del QI डॉट और उनको कंबाइन कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू ddt of del QI dot of t minus v minus del QI of t minus v is equal to QI dash. ये रीजन लिखा है, del v by del QI dot is 0 because v is function of QI only. तो ये t minus v है, ये हो गया L, तो दिस इज ddt of del L by del QI dot minus del L by del QI equal to QI dash. I runs from 1 to n. The quantity L is equal to t minus v is Lagrangian, which correspond to conservative part, and QI dash for non-conservative part. Now examples. Show that Lagrange's equation ddt of del t by del QI dot minus del t by del QI equal to QI can also be written in the form del t dot by del QI dot minus 2 del t by del QI equal to QI. डॉट का बहुत ध्यान रखिएगा, डॉट
is derivative with respect to time parameter t. Now kinetic energy solution, kinetic energy depends on generalized coordinates qj, generalized velocity qj dot and time t. So t is function of qi dot t where j runs from 1 to n number of particles. अब जो रिजल्ट प्रूव करना है ये टी डॉट से रिलेटेड है, तो इसका टी डॉट फाइंड कर लेते पहले. टी डॉट मीन्स डी डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी टी. अब ये जो क्यू जे डॉट है इट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम पैरामीटर, तो वी हैव टू यूज चेन रूल. तो पहले डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू जे होगा, क्यू जे का डेरिवेटिव टी से होगा, टी का डेरिवेटिव क्यू जे डॉट से होगा, क्यू जे डॉट का डेरिवेटिव टी से होगा, टी का डेरिवेटिव टाइम पैरामीटर से होगा टी, और टी का डेरिवेटिव टी से होगा. सो अप्लाइंग चेन रूल वी गेट डेल टी बाय डेल क्यू जे डेल डी क्यू जे बाय डी टी, उसको लिखते हैं क्यू जे डॉट डायरेक्टली ओवर समेशन, समेशन ओवर जे. फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट से डेल टी बाय डेल क्यू जे डॉट इंटू डी क्यू जे डॉट बाय डी टी, यानी क्यू जे डबल डॉट हो गया, प्लस डेल टी थर्ड वेरिएबल से डेल टी बाय डेल टी इंटू डी डी टी ऑफ स्मॉल टी, वो 1 हो जाएगा. सिंगल टर्म है इसलिए यहाँ समेशन की जरूरत नहीं, यहाँ दोनों जगह समेशन होगा. अब ये टी डॉट का डेरिवेटिव क्यू आई डॉट से लिया हुआ है यहाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट. तो लेफ्ट साइड में आ गया डेल टी डॉट बाय डेल क्यू आई डॉट इक्वल टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट. अब ये फर्स्ट टर्म में ये जो प्रोडक्ट है तो यहाँ क्यू जे डॉट दिख रहा है और टी डिपेंड्स ऑन क्यू जे डॉट, तो ये भी डेरिवेटिव क्यू जे डॉट पर डिपेंड होगा. तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेते, समेशन बाहर रख के डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये हो गया प्रोडक्ट रूल. यहाँ पर एक टर्म है क्यू जे डबल डॉट और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्यू आई डॉट से, तो क्यू आई डॉट के लिए क्यू जे डबल डॉट कॉन्स्टेंट होगा, वो एज इट इज डेरिवेटिव केवल ये फर्स्ट टर्म का लग गया डेल टी बाय डेल क्यू जे डॉट का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया. और यहाँ सिंगल टर्म है डेल टू टी बाय डेल क्यू आई डॉट डेल टी. अब ये दो टर्म बात की तो एज इट इज लिखी है यहाँ पर. यहाँ देखते हैं समेशन ऑफ ये फर्स्ट टर्म लिख दिया. अब समेशन ऑफ जब सेकेंड टर्म लेंगे तो यहाँ डेल क्यू जे डॉट बाय डेल क्यू आई डॉट है, तो जब जे की वैल्यू आई होगी तब तो ये डेल क्यू आई डॉट बाय डेल क्यू आई डॉट 1 बन जाएगा, और जब जे डिफरेंट फ्रॉम आई होगा तो ये जनरलाइज वेलोसिटीज इंडिपेंडेंट है, तो जब जब डिफरेंट होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी. इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा आई जे विच इज कॉल्ड क्रोनेकर डेल्टा. जब आई और जे इक्वल होंगे तो वैल्यू इज 1, जब आई और जे डिफरेंट होंगे तो वैल्यू इज 0. तो इसका जब समेशन लिया ये सेकेंड टर्म का, तो वी गेट ओनली when q equal to when j equal to I, it become del t by del q I into 1. तो ये था del t डॉट बाय del q I डॉट, ये इसको इक्वेशन नंबर दिए 1. अभी और क्या चाहिए, ये डी डी टी ऑफ del t बाय del q I डॉट है, ये गिवन रिलेशन में है, इसकी भी बात कर लेते. ऑल्सो डी डी टी ऑफ डेल टी बाय डी डी टी ऑफ डेल टी बाय डेल क्यू आई डॉट. तो ये जो डेल टी बाय डेल क्यू आई डॉट है
जब टी क्यू आई डॉट और टी पर डिपेंडेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी ये तीनों क्वांटिटी पर डिपेंडेंट रहेंगे। डेल टी बाय डेल क्यू आई डॉट इज फंक्शन ऑफ क्यू जे डॉट एन टी। तो चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो पहले इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्यू जे का डेरिवेटिव टी से, फिर इसका डेरिवेटिव क्यू जे डॉट से, क्यू जे डॉट का डेरिवेटिव टी से, और इसका डेरिवेटिव टी से, और टी का डेरिवेटिव टी से, वो हो जाएगा 1। सिंगल टर्म है इसलिए नो समेशन, बाकी दो जगह जे रन्स फ्रॉम 1 to n होने की वजह से समेशन समेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। डेल डेल क्यू जे ऑफ डेल टी बाय डेल क्यू आई डॉट बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी को क्यू जे डॉट और यहाँ पर क्यू जे डबल डॉट मेंशन कर दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नंबर 2, ये 1 and 2 गिव्स, क्या कर रहे हैं, ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड में था डेल टी, ये क्वांटिटी थी डेल टी डॉट बाय डेल क्यू आई डॉट, तो 1 - 2 इम्प्लाई, तो लेफ्ट साइड दोनों के माइनस बोलने से ये आ गया। राइट साइड में देखो, राइट साइड में ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गई, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, बची ये सिंगल टर्म डेल टी बाय डेल क्यू आई। नाउ डी डी टी ऑफ डेल टी बाय डेल क्यू आई डॉट फ्रॉम गिवन, ये दिया हुआ है डी डी टी ऑफ डेल टी बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी बाय डेल क्यू आई इक्वल टू कैपिटल क्यू आई। तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, इट बिकम डेल टी बाय डेल क्यू आई प्लस कैपिटल क्यू आई, यहाँ रख दिए डेल टी बाय डेल क्यू। अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ और ब्रैकेट ओपन करके माइनस क्यू आई को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो इट बिकम डेल टी डॉट बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस 2 times del t by del क्यू आई इक्वल टू कैपिटल क्यू आई एज डिजायर्ड। ओके, second example, if L is the Lagrangian of system of degree of freedom n satisfying Lagrange's equations, then show by direct substitution that L dash is equal to L plus df by dt, where f is function of generalized coordinates and time. Also satisfy Lagrange's equations, where f is arbitrary but differentiable function of its argument. F can be differentiated with argument. Means L is Lagrangian of system of n degree of freedom satisfying Lagrange's equation. This L dash also satisfy Lagrange's equation, ऐसा शो करना है। तो स्टैंडर्ड Lagrange's equations लिख लेते हैं। These are ddt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi equal to 0. I runs from 1 to n. Equation number 1 स्टैंडर्ड Lagrange's equation है। And L dash is given as L plus df by dt, where f is function of q1, q2, qn and t. तो यहाँ से L फाइंड किया जा सकता है। L इज इक्वल टू हो गया L डैश माइनस डी एफ बाई डी टी, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 2 है तो इसको f डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब अब L इक्वल टू L डैश माइनस f डॉट है। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन में डेल एल बाय डेल क्यू आई है और डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट है, वो फाइंड कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई, तो डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल टू डेल एल डैश बाय डेल क्यू आई माइनस डेल एफ डॉट बाय डेल क्यू आई, एंड डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एल डैश बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एफ डॉट बाय डेल क्यू आई डॉट। ये क्वांटिटी को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। डी डी टी ऑफ
del L dash by del Qi dot minus del F dot by del Qi dot, ये क्वांटिटी है फर्स्ट del L by del Qi dot, और सेकंड क्वांटिटी थी del L by del Qi, तो ये वैल्यू है, ये यहाँ रख दिए del L dash by del Qi माइनस del F dot by del Qi इक्वल टू 0। अब L डैश की टर्म एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, F डॉट की टर्म एक ब्रैकेट में, तो डी डी टी ऑफ del L डैश बाय del Qi डॉट माइनस del L डैश बाय del Qi, ये एक ब्रैकेट में आ गई टर्म। डी डी टी ऑफ del F डॉट बाय del Qi डॉट विथ माइनस साइन, तो माइनस कॉमन लेके डी डी टी ऑफ del F डॉट बाय del Qi, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस है, माइनस कॉमन लेने से नेगेटिव ही रहेंगी, माइनस del F डॉट बाय del Qi इक्वल टू 0। Now, what is F dot? It is dF by dt. F डिपेंड हो रहा था Q1, Q2, Qn और T पर, तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे T से तो वाया चेन रूल मिलेगा। F का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू Q1, Q1 का डेरिवेटिव T से, प्लस F का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू Q2, Q2 का डेरिवेटिव T से, अप टू F का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू Qn, Qn का डेरिवेटिव T से। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया del F by del Qi इंटू Qi डॉट समेशन ओवर I, समेशन ओवर I प्लस del F by del T इंटू dt by dt, वो 1 हो जाएगा, तो del F by del T। अभी F डॉट के लिए एक्सप्रेशन आया, इस F डॉट को यदि Qi डॉट से डिफरेंशिएट करेंगे तो Qi डॉट से डिफरेंशिएट करने पर ये 1 और बाकी की जगह डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ है नहीं Qi डॉट, तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, वी गेट del F by del Qi। देयरफॉर इक्वेशन देखो, डी डी टी ऑफ F डॉट बाय del Qi डॉट माइनस del F डॉट बाय del Qi, ये पार्ट के लिए देख रहे हैं अभी, इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ del F डॉट बाय del Qi डॉट, क्या मिला del F बाय del Qi, यहाँ से मिला इक्वेशन 3 से, माइनस del F डॉट बाय del Qi, ये इसकी वैल्यू पुट की है del F बाय del Qi। दिस इज d dt of del F by del Qi as it is del Qi, और ये जो F डॉट है मीन्स dF by dt। अब ये दो ऑपरेटर है del Qi और d dt, ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं, तो d dt ऑफ del F by del Qi, फर्स्ट टर्म भी वही है, बीच में माइनस, तो दोनों का रिजल्ट इज 0। तो ये जो ब्रैकेट है इक्वेशन 2 में, सेकंड ब्रैकेट 0 हो गया, तो बचा क्या, इसको यहाँ पर यूज कर लेते, तो 2 बिकम्स डी डी टी ऑफ del L डैश बाय del Qi डॉट माइनस del L डैश बाय del Qi इक्वल टू 0, विच आर Lagrange's इक्वेशंस फॉर L डैश। इसका मतलब L डैश L प्लस dF बाय dt था, इट सेटिस्फाई Lagrange's इक्वेशंस। और भी एग्जाम्पल है, सेल्फ लर्नर्स कैन डू दिस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसिपेशन फंक्शन। डिसिपेशन फंक्शन हमने कंजर्वेटिव सिस्टम में पढ़ा था, फोर्सेज आर डेरिवेबल फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। ओके, अब देखिए, कंजर्वेटिव सिस्टम आर डेरिवेबल फ्रॉम पोटेंशियल। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, Lagrange's equations of motion are written as d dt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi equal to 0, where L is t minus v, which is Lagrangian of the system. If
not all the forces acting on the system are derivable from potential. इसका मतलब पूरी तरह से कंजर्वेटिव नहीं है. If system is not conservative, then Lagrange's equations can always be written in the form ddt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi equal to Qj dash. अभी लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, where L corresponds to conservative and Qj corresponds to non-conservative forces. Such a situation often occurs when there are frictional forces present, and frictional forces acting on particle are proportional to its velocity. तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन से रिप्लेस कर सकते हैं. सो इफ यू कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, then for ith particle x component of force has the form Fix. Fi मतलब force on ith particle along x direction is equal to constant of proportionality kx and Vi along x direction. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रही है कि फ्रिक्शनल के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, वेयर Vix इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल. नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफ टाइप may be derived in terms of a function r which is known as Rayleigh's dissipation function, and it is defined as r is equal to half summation kx Vix का स्क्वायर प्लस ky Viy का स्क्वायर प्लस kz Viz का स्क्वायर. रिमेंबर दिस, एंड समेशन इज टेकन ओवर I, number of particles. Now from this definition we can find that ये r को यदि हम Vix से डिफरेंशिएट करें तो Vi x Viy Viz दे आर अलॉन्ग एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, तो इंडिपेंडेंट होंगे. तो जब Vix से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव मिलेंगे, बाकी दोनों का डेरिवेटिव जीरो होगा. मिलेगा क्या डेरिवेटिव, kx तो कांस्टेंट है 2 टाइम्स Vix और यहाँ हाफ रहे बाहर, हाफ के साथ 2 1 बन गया. तो kx Vix इज इक्वल टू डेल आर बाय डेल Vix एंड दिस kx Vix मीन्स माइनस Fix, और माइनस को इधर शिफ्ट कर देते तो Fix इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाय डेल Vix. ये तो हम ith पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं along x डायरेक्शन. इन जनरल वी कैन राइट Fx इज इक्वल टू माइनस kx Vx विच इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाय डेल Vx. नाउ नोट दैट ये जो सफिक्स में x लिखा है ये डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट की बात हो रही है. ये सफिक्सेस पार्शियल डेरिवेटिव नहीं रिप्रेजेंट कर रहे. राइट, अब ये कंपोनेंट्स थे. यदि पूरा पूरा वेक्टर लिखना हो सिंबॉलिक नोटेशन में f बार विल बी माइनस डेल आर बाय डेल v बार, और इट इज f बार इज इक्वल टू माइनस ग्रेड r with respect to velocity v. Now this is analogous to f bar is equal to minus grade of potential energy, where f bar is conservative force and v is potential energy. Hence we can say that r is analogous to v. Dissipation. Topic was dissipation function. Theorem. The rate of energy dissipation due to friction is 2r. Rate of energy dissipation due to friction is 2r.
आर इन्वॉल्व है मतलब रिलेस डिसिपेशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो रिकॉल कर लो, रिलेस डिसिपेशन फंक्शन इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू हाफ समेशन के एक्स वी आई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई वी आई वाई स्क्वायर प्लस के जेड वी आई जेड स्क्वायर से नंबर 1. If F bar stands for frictional forces, then we have F bar is equal to minus del R by del V bar. Number 2. Now, the work done dW by the system against frictional forces is given by dW is equal to force displacement with negative sign. Negative sign is due to work is done against the forces. अब हमको रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन की बात करना है, यानी यहाँ पर dW by dt यानी dt इंट्रोड्यूस करना होगा. देखिए dW कैन बी रिटन एज माइनस एफ बार के लिए del r by del v bar dot dr bar. This dr bar can be written as dr bar by dt by differential concept. Now dr bar by dt is v bar और ये एक वेक्टर है dr by dv bar del r by del v bar. इनके कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते del r by del vx, del r by del vy, del r by del vz और इसके कंपोनेंट v along x डायरेक्शन, v along y डायरेक्शन, v along z डायरेक्शन. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लेके एडिशन del r by del vx into vx प्लस del r by del vy into vy प्लस del r by del vz into vz dt. अभी क्वांटिटी देखना है क्या होगी. तो वी हैव r इज इक्वल टू हाफ के कांस्टेंट था, समेशन के बाहर लिखा जा सकता है, समेशन वी आई एक्स स्क्वायर ओवर आई प्लस हाफ के वाई समेशन वी आई वाई स्क्वायर ओवर आई हाफ के वाई समेशन वी आई जेड स्क्वायर ओवर आई. नाउ दिस समेशन वी आई एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट वी एक्स स्क्वायर. हियर इज द रीजन. वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम along x direction. Similarly, this is vy square and this one is vz square. तो r को जब हम vx से डिफरेंशिएट करें तो ये दोनों का डेरिवेटिव 0, यहाँ रह जाएगा kx vx. जब vy से डिफरेंशिएट करें तो ky vy, vz से डिफरेंशिएट करें तो kz vz. तो ये क्वांटिटी यहाँ पुट कर दें del r by del vx, del r by del vy, del r by del vz. तो we get 4 becomes इधर लेफ्ट साइड में dw by dw था dw इक्वल टू दिस इज kx vx, पहले से एक vx है तो kx vx स्क्वायर प्लस ky vy स्क्वायर प्लस kz vz स्क्वायर dt. एंड दिस इज ये 2 को उधर भेज दिया तो 2r इक्वल टू दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इज 2r dt and therefore dw by dt is equal to 2r, which means rate of energy dissipation is 2r. This follows the theorem. One more result is there. Lagrange's equation of motion takes the form ddt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi plus del R by del Qi dot equal to 0 in terms of Rayleigh's dissipation function, where frictional forces acting on the system are such that they are derivable in terms of Rayleigh's dissipation function R. Proof. Since frictional forces are acting on the system is not wholly conservative but partially conservative. So for partially conservative system, Lagrange's equations are d dt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi equal to Qi dash. Last article में देखा था. Where L refers to conservative part
and qi dash refers to non-conservative part, and this qi dash is given by summation for non-conservative force dot product with del r j bar by del qi summation over j. System is not conservative due to frictional forces. इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर फ्रिक्शनल फोर्सेज, वी कैन से दैट. So if frictional forces are denoted by Fj bar, तो we can write non-conservative forces are Fj bar. ये यहाँ पर रख देते. तो Qi dash becomes summation of Fj bar dot del Rj bar by del Qi. से नंबर 2. और इसको ये Qj को Qi dash को यहाँ यूज करेंगे. If R is Rayleigh's dissipation function, then Fj bar derivable from R minus del R by del Vj bar. तो इनको यूज करो Qj में, तो Qj dash Qi dash become minus समेशन F की जगह लिख दिया del R by del Vj bar dot del Rj bar by del Qi. फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट लैग्रेंजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्वांटिटी प्रूव किया था, डेल आर जे बाय डेल क्यू आई इज इक्वल टू डेल आर जे डॉट बाय डेल क्यू आई डॉट. ये दिस इज इक्वल टू रिलेशन विदाउट डेरिवेटिव इज इक्वल टू रिलेशन विथ डेरिवेटिव्स, एंड दिस आर जे डॉट बिकम्स वी वेलोसिटी वी जे बार. So this is replaced by derivative with respect to t, and rj dot replaced by vj. So it is del r by del vj bar dot del vj bar by del qi summation over j. इसको पूरा एक्सपांड किया तो it becomes derivative of r with respect to qi dot. माइनस साइन इज देयर, और इसको पुट कर देते 1 में, तो वी गेट डी डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई. लेफ्ट साइड में ले आते, माइनस क्वांटिटी थी, लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट में लाने पर प्लस डेल आर बाय डेल क्यू आई डॉट इक्वल टू 0. तो जब फोर्सेस डेरिवेबल फ्रॉम रेलेस डिसिपेशन फंक्शन हो तो लैग्रेंजेस इक्वेशन टेक दिस फॉर्म. इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल सेल्फ लर्नर्स कैन डू दिस. वी स्टॉप दिस टॉपिक हियर, एंड विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लैग्रेंजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन. रुकते हैं. टेक केयर, बाय बाय, जय गणित.